I said that why not me? What's the difference between me and the young men? How are they better than me? Or how am I lesser than them? उनको क्यों बुलाया जाए देश सेवा के लिए और मुझे क्यों नहीं? So that's how it started. मुझे कोई reference point नहीं चाहिए था. मेरा heart was my reference point. My decision, my motivation, my thought process was such कि मुझे कोई नहीं और चाहिए था बताने के लिए कि मुझे क्या करना है. मेरे लिए सक्सेस का मतलब है at the end of the day जो मैंने काम प्लान किए थे वो सब मैंने कर लिए, सारे के सारे. Be it to do with my job, to do with my children, to do with the house. That is success to me. I am successful once I have succeeded in doing whatever I planned to do today. That is successful. देखो यूनिफॉर्म पहन के तो the feeling of pride, the feeling of responsibility आती ही है, पर अगर नहीं भी हो तब भी feeling of responsibility, feeling of pride, feeling of discipline वो आज तक है मेरी जिंदगी में. मतलब your entire life means that you are supposed to be on time for everything. You're supposed to do everything perfectly and you're supposed to make sure that everything is taken care of. This is something the army teaches you. That is what discipline is all about. तो आपके पापा बिल्कुल ठीक कहते थे. ये वर्दी हो या ना हो, a soldier is a soldier, always a soldier. Pooja, not only professionals, for everybody you need to know etiquette का मतलब है how a thing is supposed to be done. मतलब आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो आपको कैसे खाना है, अगर आप फोन पे हो आपको कैसे बात करनी है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो आपको कैसी बात करनी है. तो if you are a developing country and if you are educated, there are certain norms that you have to follow. ये नहीं है कि आपने डिजाइनर क्लोथ्स पहने और आपने क्या करना है, ये नहीं है. बट बेसिक मैनरिज्म, बेसिक मैनर्स, एटिकेट तो सबको सीखना चाहिए. ओनली देन कैन यू बी कंपैटिबल विद अदर पीपल. मतलब व्हेन पीपल कम फ्रॉम अदर नेशंस तो हम बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, पर आपस में व्हाई नॉट? अगर आपको सारे सब पता है कि कौन सा चीज कैसे कब करनी है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, isn't it? So I think it is something that everybody should know. Leadership means just being responsible. हमारी लीडरशिप एकेडमी का मोटो यही है, to make the youth future ready. मतलब you have to be ready. आप ऐसे नहीं सोच सकते कि ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा. You are the one who has to take action. The person who takes action when it is required, he is a leader. Leader कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है. अपनी सोसाइटी में आप देख रहे हो कि यहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं लोग, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा. आप जाके बोलो कि प्लीज ये यहाँ से उठाओ, कोई स्टेप्स लो कि इसको उठा के कहाँ फेंकना चाहिए. He is a leader. देखो बहुत जरूरी है कि आपके पास अपने पैसे हों और आपको पता है अपने ऊपर कितना खर्चा करना है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन्स इंडिपेंडेंस, isn't it? It is. अगर आपको किसी से मांगने पड़ते हैं पैसे हमेशा तो वो नहीं. some husbands are very nice, they give their women के इतना पैसा ये आपका है, आप सोचो मत इसका क्या करना है. But it is important to earn or just have some kind of a kitty money with yourself जो आप अपने ऊपर spend करें. Women's Day के लिए मेरा एक यही है कि women have a very very hard work in this universe. हम लोग पूरे बैलेंसिंग फैक्टर्स है. अगर सारे मेन होते तो क्या होता है इस दुनिया का, और अगर सारी विमेन होती तब क्या होता है इस दुनिया का. So we are the balancing factors. We have to make sure that the family, finance, children, universe, world, everything is balanced. This is one thing that you should realize that you have been made for a purpose. है ना, भगवान ने जब men बनाए तो बोला कि बहुत अच्छा काम किया मैंने, I've done very well. And then he made and then he said I can do better. Let me make a woman. So he made the woman as a better structure of men. So we have that responsibility to take control of men, teach them, work with them, collaborate with them, and make this world a better place. Why you said yes to me to come to my show? You were so persistent. एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा. You went on and on and on. So I said, yeah, like ये बहुत पूछ रहे, बहुत पूछ रहे, बहुत पूछ रहे. कोई एक बारी, दो बारी, तीन बारी बंद हो जाते हैं. But she's continuously asking me. So she must be passionate about what she's doing. So let me say yes to her. So hello everybody. Welcome to Pooja's Talk Show. Once again a new episode and हमेशा की तरह हमारा आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट मेजर प्रिया मैम. एंड इतनी सारी डिटेल्स मैम के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया था हमारे फ्लायर्स के थ्रू, हमारे एडवर्टीजमेंट के थ्रू. तो फिर से एक बार मैम का इंट्रोडक्शन. मेजर प्रिया मैम इंडियन आर्मी में फर्स्ट लेडी कैडेट है और ये हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन की बात है और बहुत सारी चीज़ें आज हम जानेंगे मैम के साथ. Ma'am is a leadership coach, motivational speaker, and mountaineer too. So, welcome to Pooja's Talk Show, ma'am. How are you?
Thank you so much. Thank you so much, Pooja. Thank you. So it is my honor and privilege to talk to you, ma'am. And I'm जब भी मेरे टॉक शो में कोई भी आर्मी ऑफिसर आता है, आई फील सो हैप्पी बिकॉज मेरे फादर भी आर्मी में थे और कभी मेरा भी ड्रीम था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बन सकूं, बट वो पूरा नहीं हो पाया. बट आई फील सो हैप्पी एंड सो कनेक्टेड वेन एवर आई सी एनी आर्मी ऑफिसर in front of me. So it's my honor to have you, ma'am. Thank you so much. पर आपका क्यों नहीं हो पाया सपना सच? मैम एक्चुअली एक तो था कि मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लाइक एंड आई वाज लाइक नॉट सो गुड इन. मेरे से बुरी नहीं हो सकती आपकी मैथ्स, मुझसे बुरी नहीं हो सकती, मुझसे बुरी किसी की मैथ्स नहीं हो सकती है. पता नहीं मैम. एंड सेकंड हाइट का भी था कि आई वाज नॉट सो हाइटेड पर्सन, तो लाइक 5 फीट ही है मेरी. और फिजिकल भी उतनी मतलब अच्छी नहीं थी मैं. आई एम ओनली 5'2". ओके. Did you try, Pooja? Did you try? एक बार बस एनडीए का एग्जाम दिया था मैंने, एक बार मैम, एंड नहीं हुआ फिर उसमें. All right. चलो, let's go ahead. ओके. तो मैम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से. लाइक आप पहली लेडी ऑफिसर है, तो यूजुअली मतलब जैसे आपकी स्टोरी जो मैंने सुनी और पढ़ी, आपके पापा पुलिस ऑफिसर थे और वहां से आपको इंस्पिरेशन मिली और एक इंसिडेंट हुआ आपके कॉलेज में एंड देन वहां से स्टार्ट किया. पर जब आपने शुरू किया तब कोई भी नहीं था मैम. लाइक एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना, जैसे कि हम देखते हैं कि ऐसा हो रहा है तो हमें करने की इच्छा होती है. पर आपने जब अपना ये करियर चूज किया तब कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं था आपके पास. तो आपने कैसे सोचा कि लाइक ये ड्रीम आपका पूरा होगा, बिकॉज उस समय तो ये फैसिलिटी ही नहीं थी डिफेंस में. इसीलिए मैंने आपको पूछा था पूजा कि आपने क्या क्या किया अगर आपको फौज ज्वाइन करनी थी. दैट मीन्स इट वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग अ फीलिंग. तो मुझे व्हेन आई वांटेड टू जॉइन द आर्मी, आई न्यू जो रेफरेंस पॉइंट नहीं चाहिए, रेफरेंस पॉइंट वाज माय हार्ट. ओके, आई हैव टू मेक इट हैपन. ये नहीं हो रहा, मुझे से करना है, चाहे जो मेरी हाइट है, जो मेरा एजुकेशन है, मेरा गंदा मैथ्स है, व्हाटएवर, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है. राइट. So I just decided that nobody else is going to show me the path. I have to open the path for myself. So that is why when I saw this advertisement for young men to join the Indian Army, I said that why not me? What's the difference between me and the young men? How are they better than me? Or how am I lesser than them? उनको क्यों बुलाया जाए देश सेवा के लिए और मुझे क्यों नहीं? So that's how it started. मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं चाहिए था. मेरा हार्ट वाज माय रेफरेंस पॉइंट. माय डिसीजन, माय मोटिवेशन, माय थॉट प्रोसेस वाज सच के मुझे कोई नहीं और चाहिए था बताने के लिए कि मुझे क्या करना है. So when you decided to join the army, मैम, like जब आपने डिसाइड किया तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मेरे पेरेंट्स वर ऑलवेज वेरी वेरी सपोर्टिव. आई वाज अ टॉमबॉय राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, तो उनको पता था ये कुछ ऐसा ही करेगा. they were perfectly fine with it कि बच्चा जो करना है आप करो, and as long as you're able to do it, follow it, perfectly fine. मुझे उनसे बहुत सारा सपोर्ट मिला. उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं. Oh, that's great. So मैम लाइक जैसे कि मैं भी थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड इंसान हूँ. लाइक आपका एक शो का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुना था जहाँ पे आप बात कर रहे थे कि लाइक आई वाज पैशनेट अबाउट इट एंड दैट्स व्हाट, वही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था. तो जनरली वुमेन के केस में क्या होता है कि लाइक अगर आप थोड़ा करियर ओरिएंटेड होते हो तो लोग कहते हैं कि ये होना अच्छी बात नहीं होती. लाइक एज अ वुमेन यू नीड टू बी फैमिली ओरिएंटेड और केयरिंग नेचर और यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स. अगर आप थोड़ा पैशनेट हो जाओ अपने करियर या अपने ड्रीम के लिए तो लोग थोड़ा सेल्फिश बोलने लगते हैं आपको. तो क्या कभी आपको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा? तो सबसे पहले तो ये लोग कौन है, ये लोग कौन है, मतलब आपकी फैमिली तो आपको कभी नहीं ऐसे बोलेगी ना कि दैट लाइक माय पेरेंट्स, दे आर वो लोग हैं. और उन लोग ने कभी भी नहीं ऐसे बोला कि यार यू आर बिकमिंग
if you are passionate about something and if people love you and it's your family, they will never let you down. They will tell you, करो जो आपने करना है, करो. और हाँ, once you become a mother, once you become a wife, वो है हमारे job. मतलब you have to draw a balance. You've chosen both. You've chosen a life in the army. You've chosen a life with your family. So it is up to you to draw the balance. ये लोग कहाँ से आते हैं, लोग कौन है? ये मेरी जिंदगी में कोई ऐसे लोग है ही नहीं है पूजा. और सबको भी यही सोचना चाहिए कि what लोग want is not what your life is. Let them keep wanting whatever they want. The moment you get you're about 25, लोग कहते हैं शादी कर लो, तो उसके बाद you get married and then लोग कहते हैं कि baby. Who are these लोग यार? इनके ऊपर नहीं इतना होना पड़ता है. As long as your family and you are in rhythm with each other, nothing else matters. Wow, that's amazing. So मैम, लोग हमेशा सॉरी पीपल टॉक अबाउट सक्सेस, लाइक कुछ लोगों के लिए पैसा, कुछ लोगों के लिए फेम, कुछ लोगों के लिए पोजीशन सक्सेस होती है. तो वी वुड लाइक टू नो कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या होता है. मेरे लिए सक्सेस का मतलब है एट द एंड ऑफ द डे जो मैंने काम प्लान किए थे वो सब मैंने कर लिए, सारे के सारे. Be it to do with my job, to do with my children, to do with the house. That is success to me. I am successful once I have succeeded in doing whatever I planned to do today. That is success for me. राइट. सो मैम, लाइक आपकी स्टोरी जब सुनी तो मुझे याद है आपने उसमें कहा था कि आपने चीफ जो थे आर्मी के उनको आपने एक लेटर लिखा कि लाइक व्हाई वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी जहाँ पे वुमेन भी सर्व कर सके इंडियन आर्मी को. तो ये ख्याल कैसे आया मैम, और आपको क्या लगा था कि आपका लेटर जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा एंड ये बहुत बड़ा मेजर चेंज आपकी वजह से नहीं, आएगा. एंड आई थिंक ऐसी कुछ सिमिलर पता है, स्टोरी किरण मैम की भी है, किरण बेदी मैम की भी मैंने ऐसा सुना जब स्टोरी उनका, तो उनका भी कुछ रिलेटेड है. जब मैं आपकी स्टोरी सुन रही थी तो मुझे सेम फीलिंग आई, लाइक कि ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ था. किनके साथ? किरण बेदी मैम, द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर. अच्छा अच्छा अच्छा, या ऑफ कोर्स आई नो हर, आई नो ऑफ हर, वी ऑल नो. सो मेरा ऐसा था कि आई ऑलवेज थॉट आई विल जॉइन द आर्मी, पर ऐसे कोई प्रोविजन ही नहीं थी. तो एक दफा बैठ के आई वाज जस्ट सीइंग द एम्प्लॉयमेंट न्यूज, तो उसके अंदर था देयर वाज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर यंग मेन टू जॉइन द इंडियन आर्मी. तो मैंने देखा कि उसके सारे मैं वो फुलफिल कर रहा हूँ जो भी रिक्विजिट्स हैं, एक्सेप्ट दैट आई वाज नॉट अ यंग मैन. तो फिर मुझे लगा अभी क्या किया जाए, तो देखा कि दिस एडवर्टाइजमेंट वाज ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. तो मुझे लगा कि अब किससे पूछा जाए क्या करना है, तो दैट्स हाउ आई रोट अ लेटर टू हिम कि व्हाई नॉट women, why only men? I mean, we can also serve our nation, we are also capable, why should you not give us an opportunity? तो उस टाइम पे मुझे नहीं लगता था कि वो ये लेटर उनके पास पहुंचेगा भी, कि वो उसको पढ़ेंगे भी और रिप्लाई भी करेंगे. But that's how the army is. That letter reached him, he read it, and he replied to me. And he told me that it'll take a little time, but aap continue karo, carry on with your exercises, with your regime, with your studies, with your curriculum, and whenever it happens, it will happen. Great. So मैम, लाइक आई ऑलवेज लिसन टू माई फादर. वो हमेशा बोलते थे कि आर्मी की जो प्रोफेशन है, लाइक इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ सर्विस. और वो एक और चीज बोलते थे कि सोल्जर Absolutely. हमेशा सोल्जर ही होता है. उसके बॉडी पे वर्दी हो या ना हो, ही इज ऑलवेज सोल्जर. तो इसका मतलब मैंने तो उनसे समझा, आपसे भी बिल्कुल जानना बिल्कुल. है मैम, इसका क्या मतलब है. इसका ये मतलब है कि देखो, यूनिफॉर्म पहन के तो द फीलिंग ऑफ प्राइड, द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही है. पर अगर नहीं भी हो तब भी फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीलिंग ऑफ प्राइड, फीलिंग ऑफ डिसिप्लिन, वो आज तक है मेरी जिंदगी में. मतलब योर इंटायर लाइफ मीन्स that you are supposed to be on time for everything. You're supposed to do everything perfectly, and you're supposed to make sure that everything is taken care of.
This is something the army teaches you. That is what discipline is all about. तो आपके पापा बिल्कुल ठीक कहते थे, ये वर्दी हो या ना हो, a soldier is a soldier, always a soldier. राइट। और एक और चीज़ है मैम, लाइक एक आर्मी ऑफिसर मे बी ही इज रिटायर और मे बी इन द यूनिफॉर्म और नॉट इन द यूनिफॉर्म, वो दूर से पता चल जाता है, लाइक मे बी ही इज अ सोल्जर या दैट पर्सन इज अ सोल्जर। ये कैसे होता है मैम, हाँ, लाइक दिस मैजिक, हाउ इट हैपेंस? आप देखो, आप अपनी पर्सनालिटी को, you're always standing tall, you're not slouching, you're not littering, you're not doing anything which is not officer like. मतलब I don't know how to explain this, पर जैसे मैंने आपको बोला, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यूनिफॉर्म पहन के लेते हो, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बिना यूनिफॉर्म के भी लेते हो. So you will never find an army officer getting late or dressed badly or behaving in an unofficially, like ऐसा नहीं होता. ऑटोमेटिक है ये, इनबिल्ट है. राइट। सो मैम, लाइक ड्रेस की बात हो रही है एंड इट इज माय प्रोफेशन टू हेल्प पीपल टू ड्रेस वेल। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एस्पेक्ट। मोस्टली जब मैं प्रोफेशनल्स, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके साथ डील करती हूँ, तो उनसे जब भी बात करती हूँ, लाइक इंजीनियर और मे बी, वो बोलते हैं कि हमें हमें क्यों ज़रूरत है, हम इतना टेक्निकल काम करते हैं, हम इतना थक जाते हैं और हमें, मुझे नहीं लगता, मतलब वो ऐसा कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि हमें बहुत अच्छा मैनर्स और ये सब की ज़रूरत है। क्या हम कस्टमर फेसिंग काम थोड़ी करते हैं, हम तो टेक्निकल काम करते हैं, या फिर हम फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत है? सो आई ऑलवेज़ टेल देम कि इस मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है वो एक डिफेंस ऑफिसर करता है, एंड मुझे भी नहीं लगता कि उनको कोई ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उनको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे कि आपने बोला, ऑफिसर शुड बी लाइक अ ऑफिसर। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं, लाइक एक डिफेंस ऑफिसर को हर चीज़ सिखाई जाती है, लाइक हाउ टू ड्रेस वेल, हाउ टू बिहेव वेल, इवन दो डाइनिंग एटिकेट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल हाइजीन, एवरीथिंग, राइट? तो कितना ज़रूरी है, मतलब सिर्फ एक ऑफिसर के लिए नहीं, बट कोई भी प्रोफेशनल हो तो कितना ज़रूरी है और कितना नहीं, मैटर ये करता है? सबसे लिए, नो नॉट इवन, no Pooja, not only professionals, for everybody you हुँ, need to know etiquette. का मतलब है how a thing is supposed to be done. हुँ, मतलब आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, आपको कैसे खाना है, अगर आप फोन पे हो आपको कैसे बात करनी है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो आपको कैसी बात करनी है. So if you are a developing country and if you are educated, there are certain norms that you have to follow. ये नहीं है कि आपने डिजाइनर क्लोथ्स पहनने और आपने क्या करना है, ये नहीं है. बट हुँ, बेसिक मैनरिज्म, बेसिक मैनर्स, एटिकेट तो सबको सीखना चाहिए. ओनली देन कैन यू बी कंपैटिबल विद अदर पीपल. मतलब व्हेन पीपल कम फ्रॉम अदर नेशंस तो हम बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, पर आपस में व्हाई नॉट, हुँ। व्हाई नॉट. अगर आपको सारे सब पता है कि कौन सी चीज कैसे कब करनी है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, isn't it? So I think it is something that everybody should know. And of course academy में जाके हमें ये सब कुछ सिखाते हैं because they know ये लोग बहुत सारे अलग लोगों को मिलेंगे, बहुत सारी, so they have to impress them कि हम, we know all this. But I think it is a human conditioning. Everybody should know this. क्या कब करना है, कैसे करना है. It is a human requirement, not an officer requirement alone. राइट, एब्सोल्युटली राइट मैम। सो मैम, आप एक लीडरशिप कोच हो और मुझे लगता है कि डिफेंस में जब हम होते हैं तो लीडरशिप स्किल्स हम सीख जाते हैं, लीड करना लोगों को, और मुझे लगता है कि डिफेंस जितना अच्छा लीडरशिप रोल सिखाती है, उतना शायद कोई और प्रोफेशन नहीं सिखा पाता। तो लीडरशिप स्किल क्या, मतलब लोगों को जनरली ऐसा फील होता है कि लीडरशिप स्किल मतलब लोगों को ऑर्डर देना, लोगों से काम कराना। तो मैम आप कोच हो, लीडरशिप कोच हो, तो हम जानना चाहेंगे कि लीडरशिप होती क्या है? Leadership means taking responsibility when it is required. आप सोचो, आप जा रहे हो और एक एक्सीडेंट हो गया रास्ते में. अब इफ यू आर नॉट अ लीडर, आप अपनी गाड़ी में चले रहोगे आगे, ठीक है. अ लीडर विल स्टॉप हिज कार, गेट आउट, हेल्प दैट पर्सन ना, उसके लिए कुछ उसकी फर्स्ट एड करेगा, गाड़ी मंगाएगा, उसको एम्बुलेंस मंगाएगा, उसको भेजेगा.
लीडरशिप मीन्स जस्ट बीइंग रिस्पॉन्सिबल. हमारी लीडरशिप एकेडमी का मोटो यही है, टू मेक द यूथ फ्यूचर रेडी. मतलब यू हैव टू बी रेडी. आप ऐसे नहीं सोच सकते कि ये करेगा वो करेगा वो करेगा. यू आर द वन हु हैज टू टेक एक्शन. द पर्सन हु टेक्स एक्शन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, ही इज अ लीडर. आप लीडर कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है. अपनी सोसाइटी में आप देख लो कि यहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं लोग, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा. आप जाके बोलो कि प्लीज ये यहाँ से उठाओ, कोई स्टेप्स लो कि इसको उठा के कहाँ फेंकना चाहिए. यहाँ he is a leader. Leader doesn't mean you have to be a political leader or something like that high. You can be a leader in your own home, in your own society, in your own community. Leadership means responsibility. Absolutely right, ma'am. Responsibility, accountability, and taking a initiative. Yes. So, मैम अभी कुछ दिन पहले 2 वीक पहले विमेंस डे था, तो आप विमेंस के लिए क्या कहना चाहोगे? विमेंस के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज की डेट में या कभी भी कितना जरूरी है? क्या ये जरूरी है? इट इज इम्पोर्टेंट. देखो, बहुत जरूरी है कि आपके पास अपने पैसे हों और आपको पता है अपने ऊपर कितना खर्चा करना है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन्स इंडिपेंडेंस, isn't it? It is. अगर आपको किसी से मांगने पड़ते हैं पैसे हमेशा, तो वो नहीं. Some husbands are very nice. They give their women के इतना पैसा ये आपका है, आप सोचो मत इसका क्या करना है. But it is important to earn or just have some kind of a kitty money with yourself जो आप अपने ऊपर spend करें. Women's Day के लिए मेरा एक यही है कि women have a very very hard work in this universe. हम लोग पूरे balancing factors हैं ना. अगर सारे मेन होते तो क्या होता है इस दुनिया का, और अगर सारी विमेन होती तब क्या होता है इस दुनिया का. So we are the balancing factors. We have to make sure that the family, finance, children, universe, world, everything is balanced. This one thing that you should realize, that you have been made for a purpose. है ना, भगवान ने जब men बनाए तो बोला कि बहुत अच्छा काम किया मैंने, I've done very well. And then he made and then he thought, I can do better. Let me make a woman. So he made the woman as a better structure of men. So we have that responsibility. Okay, take control of men, teach them, work with them, collaborate with them, and make this world a better place. Right. So it's not competition. It's working together with them to make the family, the community, the society, and the world a better place. So use your feminism as a strength, not as a weakness. Always. It's a strength that God made you as a woman because he wanted you to be stronger, better, more brilliant. Absolutely right, ma'am. Thank you for sharing. So, ma'am, एक और चीज like as a women शायद not as a women, as a human शायद ये बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए. Like choosing a life partner और having a life partner. कैसे correct life partner choose करे और एक सही लाइफ पार्टनर के होने से क्या बेनिफिट होता है? क्या कह सकते हैं मैम इसके बारे में कुछ? I have no advice for this. I have no advice for this. I really don't know. I mean, I am not, I have no advice for this. It happens for good for some people and it doesn't happen for some people. I don't know. I mean, I'm not an expert on this at all. I've just been lucky. And of course, it's important to choose somebody who understands you, who's, no, people marry people from different fields also. It's not important that an army officer should marry an army officer. ऐसा है, पर ये I'm not an expert, Pooja, not the right person to answer your question. Okay, not an issue, ma'am. So, ma'am, like women's के लिए like young women जैसे कि जो बच्चे होता है like teenagers. मतलब nowadays if I see most of the time like they spend on like beauty and makeup and all those things. जो एक कैरेक्टर बिल्डिंग का जो टाइम है या फिर एक पैशनेट अपनी चीजों के लिए पैशनेट होना. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन, जैसे कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, शायद अब मुझे लग रहा है शायद मैं उस चीज के लिए उतनी ज्यादा पैशनेट नहीं थी. अगर होती तो डेफिनेटली आई वुड हैव ट्राइड. नाउ आई एम फीलिंग सो because like talk show I'm talking about, I'm really passionate about it.
एंड मैं कैसे भी करके लोगों तक पहुंच जाती हूँ एंड कैसे भी करके इसे लाइक करती हूँ. सो दैट वाज द क्वेश्चन व्हिच Make यू it आस्क्ड मी, happen. रियली हेटेड मी एंड नाउ आई एम फीलिंग शायद मैंने ट्राई ही नहीं किया. तो सिमिलरली आई लिसन, आई टीच द स्टूडेंट, तो वो कहते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम ऐसा नहीं कर पाते, हमारे पेरेंट्स रिसोर्सेज नहीं देते. तो कैसे एक अच्छा कैरेक्टर बिल्डिंग हो सके किसी यंगस्टर्स में, मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं आजकल के स्टूडेंट्स. इवन yes, so many people are so good also, but most of the numbers are so distracted. मतलब छोटी छोटी एज में like so many things they do, but they are not passionate about their passion or their work or their career. तो उसके बारे में मतलब मैम कैसे हम उनको सिखाएं, या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर कुछ लाइक आप में एक पेट्रियोटिज्म की एक चीज डेवलप हुई बचपन से ही शायद, या पहले से आपने देखा, या जैसा भी आपका एनवायरनमेंट रहा हो, तो कैसे हम ये अपने यूथ को सिखा सकते हैं मैम? यार मुझे नहीं लगता पूजा हम कुछ सिखा सकते हैं अब इन लोगों को. दीज पीपल दे आर बोर्न इन एन एज जहाँ पे गैजेट्स आर सो इम्पोर्टेंट टू देम. मतलब ये आइदर फोन पे है या इस पे है या इस पे है, इनका वर्ल्ड फोन मतलब मीडिया है. तो आई थिंक फॉर पेरेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द फोन टू द चिल्ड्रन. आप किस एज पे दे रहे हो उनको फोन? आप उनको 3 years 4, आप उनको क्या क्या सिखा रहे हो? सबसे पहले आप उनको दे देते हो कि आई कैन स्पेंड टाइम विद यू, तो चलो आप फोन के साथ टाइम स्पेंड कर लो. तो दैट चाइल्ड गेट्स सो इन्वॉल्व्ड विद द फोन, विद देन द टीवी, देन मीडिया, देन नेट, whatever. So they lose touch with the real world because parents don't have enough time to spend with them. But if parents have time to spend with them, they will be able to speak to them. They will be able to tell them that you are good at this, follow this. This is your passion. This is how I will help you. तो क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों में कनेक्ट खत्म होता जा रहा है, इसकी वजह से चिल्ड्रन आर गोइंग इनटू अदर डायरेक्शंस. सो माय एडवाइस नहीं है, माय थॉट प्रोसेस सेज गैजेट्स कम करो बच्चों के लिए. Don't think that you can buy them a phone because you cannot give them time. Give them time. जितना टाइम आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करोगे, आप उतना ही उनको पैशनेट टुवर्ड्स देयर whatever they want to do वो कर पाओगे, to understand them. तो you have to get them out of this evil of social media. इससे निकालना पड़ेगा आपको, तभी वो कुछ और सीख पाएंगे. नहीं तो वो आप क्या कह रहे हो, वो ये कह रहा है, ये कह रहे हैं, आज फोन पे ये आया, आज ये मैसेज आया, ये आया, ये. They'll keep following everything here and there without knowing what do they want. That's what I think. उनको time दो to be with themselves, to be with their parents, not to be on the phone all the time, to be on media all the time, to be seeing movies, stories. ये सब करके सब गड़बड़ हो रही है. यस, एब्सोल्युटली राइट मैम. सो जाते जाते लास्ट क्वेश्चन मैम, विमेन्स, यंग विमेन को क्या 3 एडवाइस आप देना चाहोगे मैम? यार मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि women are the most beautiful creation of this universe. So use this beauty not to find favors, not to find shortcuts, but use this power, this beauty, this Shakti to make life happen for yourself and for others. थैंक यू सो मच मैम. एंड हमेशा लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो आजकल मैं अपने गेस्ट से ही पूछ लेती हूँ. पीपल डू आस्क मी लाइक you don't have so many followers and you are not famous face, but आप बड़े बड़े लोगों को बुला लेते हो. Why do they say yes to you? तो वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ मैम. Why you said yes to me to come to my show? What did you like about? Because you were so persistent. Oh, you were so persistent. एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा. You went on and on and on. So I said, yeah, like ये बहुत पूछ रहे, बहुत पूछ रहे, बहुत पूछ रहे. कोई एक बारी, 2 बारी, 3 बारी बंद हो जाते हैं. But she's continuously asking me. So she must be passionate about what she's doing. So let me say yes to her.
That is the reason. Thank you so much, ma'am. It means Or this is life story, yeah. okay. Thank you so much, ma'am. And now we are having our rapid fire round. So I'll ask some of the questions which you need to answer within 5 seconds. Otherwise, I'll move to the next question. Are you ready for that, ma'am? Okay. All right. Okay. I'm ready. Okay. So what's your favorite time of the day? Early morning, where I can be with myself, spend time with myself. That's my me time. Great. So who's your inspiration? Bhagat Singh. He is my inspiration. He was 23 when he died for the country, thought of nothing else except the country. He is my inspiration always. Yes. And yesterday was like Punyatithi of Bhagat Singh, 23rd March. Angie. What's your favorite number and why? I don't have any favorite number. No, I don't have any favorite number. Okay. So what's your favorite food? My favorite food is South Indian food. I like idli, sambar, dosa, uttapam, appam, sab kuch. Everything South Indian. Okay. So what advice would you give to your younger version? Don't get married so early in life. For a time low. I got married when I was 26, but I Oh, think I should have got married when I was 36. okay. So, ma'am, if you got a superpower one day and you need to change one thing in this world, what would you like to change? यार आई वुड ब्रिंग इट बैक टू द 70s और मैं उनको 70s में ही रखता कि 70s की सिंप्लिसिटी इतनी अच्छी थी रिलेशनशिप्स वर गुड देयर वाज सो मच हैप्पीनेस तो मैं उनको टाइम जोन में टाइम वॉक में 70s में ही घुमाता रहता 80s 90s 2000 में लेके ही नहीं आता आई वुड हैव केप्ट देम देयर ओनली Okay, great. So, any favorite song of yours? all Kishore Kumar songs are my favorites. ओके सो थैंक यू सो मच मैम हमारे शो में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एनी फीडबैक एनीथिंग व्हिच यू वांट टू से एंड शेयर विद मी यू कैन शेयर विद मी I'll do that, Pooja. Thank you. It's such a nice thing that you're doing this, talking to people and inspiring others and sharing it with others. So well done. Keep up the good work. All the best to you. थैंक यू सो मच मैम हैव अ गुड डे बाय बाय